from Sonupant Dandekar Junior College, Palghar. Today we are starting with the 12th number chapter. Name of the chapter that is Agro Informatics. Now, what's the meaning of that chapter? That is agriculture and use of information technology इन टर्म ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि यहाँ पर हमको अलग अलग टाइप के जो आईटी के सॉफ्टवेयर है या तो एप्स है या तो मोबाइल डिवाइसेस है so that we are using in a agriculture for the benefit of agriculture. So this is called it as a agro informatics. So now we are starting with that topic. So starting with that, the first point, that is information technology. 12.1 agro information technology. Now what's the meaning of that? A huge amount of innovation are awaiting adoption. Agriculture is a peak of research and the development. Okay, so if I'm taking example of India, so India के अंदर अभी भी कुछ ऐसे पार्ट बाकी है जहाँ पर भी एग्रीकल्चर के यूज अभी भी होना बाकी है और वहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए. So the next point, information technology is the best way for fast and effective dissemination of agriculture technology. So if you are using agriculture in term of इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि जहां पर हम लोग आईटी का सॉफ्टवेयर या तो आईटी के जो भी इलेक्ट्रॉनिक यूज है उसका अगर हम लोग एग्रीकल्चर में यूज करें सो दैट विल बी अ वेरी benefited for we people, which you can see in this picture also. Okay, here you can see that this is the agriculture. On the basis of this drone camera, survey will be taken on that area without a presence of that animal. You can see that this person who is present apart from that agriculture, it is handling that device on the basis of their tablet. Okay, and this will be arranged in order to make that you can see that there is the receiver, this is from that signal, and this is going to this data server, and this data will be recorded on the absence of that person. Okay, so this is the use of that. Use of electronic gadgets and the software for storage, then the analysis, transfer, and retrieving information is termed as the information. Okay, so you can see that यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो ड्रोन वाला कैमरा है वो यहाँ से पिक्चर्स वगैरह ले रहा है, मींस डाटा का कलेक्शन हो रहा है. देन ये डाटा जो भी है विद हेल्प ऑफ दैट सर्वर इट इज गोइंग इनसाइड दैट बिगर सर्वर, यानी कि यहाँ पे ये कलेक्ट होगा. देन ये जो भी डाटा यहाँ पर कलेक्ट हो रहा है ये एनालाइज होने के बाद फिर ये जो भी पर्सन जो भी थर्ड पार्टी है वो उसका क्या कर सकता है, यूज कर सकता है. Informatics is agriculture has a tremendous scope and potential in converting a resource in a prosperity. Now the next part, agroinformatics is an application in agriculture which innovative ideas, techniques, and scientific knowledge to expand a horizon of a conflict. यानी कि यहाँ पर हमने एग्रो इन्फॉर्मेटिक्स में जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड पार्ट है उसका हमने किसमें यूज किया है, तो विद हेल्प ऑफ दैट कंप्यूटर दैट इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग इन एग्रीकल्चर फॉर आवर बेनिफिट. नाउ agro informatics is the information technology applied to management and analysis of agriculture data. यानी कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ जो भी डाटा यूज होगा एंड एनालाइज होगा मैनेज होगा वो किससे रिलेटेड होगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा और ये फील्ड से रिलेटेड, देन ये फार्मर से. इट इज अ वेल रिकॉग्नाइज्ड दैट अ डिजिटल images and video clips of actual application of agriculture technology have a greater impact on minds of farmers than the textual description of the text. Now, flow of information from the source of receiver should be faster, effective and economical. Means अब देखो if you can see that ये जो थर्ड पर्सन है इसको अगर उसका यूज देखना है, अगर वो कैसे फील्ड में कैसे वर्क हो रहा है वो देखना है, सो दिस पर्सन कैन यूज दैट टैबलेट, वहां पर वो सर्च करेगा और फिर डायरेक्टली लाइव
या तो फिर उसको ये डाटा में जो भी इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्टली इफेक्टिव एंड फास्टर वे में ये पर्सन को रिसीव हो जाए, यानी कि फार्मर्स को भी इसका यूज हो। Modern devices and systems like a computer. So, which are the systems which you can use in a agro-informative technology? So, that is computer, then mobile, that is cell phone. हमारे पास जो normal cell phone होता है वो, then internet. In that cell phone, we having internet, we having a data pack, then etc. are capable to store and process and communicate and regenerate the information at a higher speed with the lowest cost. यानी कि अगर मैं कहीं पर फील्ड में खड़ा हूँ, या तो मुझे यहाँ पर मेरे घर पर भी बैठा हूँ या तो मैं कहीं पर कॉलेज में बैठा हूँ और वहां से मुझे मेरे स्टूडेंट्स को जो भी एक्चुअली फील्ड में क्या हो रहा है अगर वो मुझे दिखाना है, सो अल्टीमेटली आई कैन कॉल दैट फार्मर्स, और उस फार्मर से डायरेक्टली जो भी डाटा है ऑन द वे ऑफ ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन हाई स्पीड में हम लोग क्या है लोवेस्ट कॉस्ट में, यानी कि वो पर्सन वहां पर गया भी नहीं थर्ड पार्टी और उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन लाइव यहीं से मिल जाए। ये से फार्मर्स भी यूज कर सकते हैं, अगर फार्मर्स वगैरह के वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो दे कैन कॉल द पर्सन दैट इज रिलेटेड विद एग्रीकल्चर, जो कि उस पर्सन जो भी उस फील्ड से या तो उस क्रॉप से रिलेटेड बहुत ही ये है, तो उसको कॉल करके उसका जो भी है सॉल्यूशन मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक दैट इज एग्रो इंफॉर्मेटिक। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इन that is some of the instrument, that is 12.1.1 meaning and use of modern devices and system in agriculture. In that, the first one main important unit, that is a computer. All you know that computers आजकल सभी को यूज होता है। Computer is a magic box which can accept information through a different input device. Okay, we can connect the computers को हम लोग अलग अलग मीडिया जो भी है उसको कनेक्ट कर सकते हैं और फिर उसके अंदर जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। लाइक विजुअल थ्रू अ कैमरा, जैसे कि पर्सन टू पर्सन अगर किसी को वीडियो ये करना है लाइव, सो कैमरा कनेक्ट हो जाएगा। स्कैनर, यू नो दैट स्कैनर वगैरह जो भी है वो कनेक्ट हो जाएगा। ऑडियो थ्रू अ माइक्रोफोन, माइक्रोफोन से डायरेक्टली ऑडियो कनेक्ट हो जाएगा। देन एनालॉग एंड डिजिटल कीपैड और माउस, यू कैन सी दैट हर एक माउस में क्या प्रोवाइड होता है, तो कीबोर्ड, तो कीबोर्ड से हम लोग जो भी है वो कीपैड से वहां से हम लोग कर सकते हैं। देन माउस, so capacity of a computer to store information is just unlimited. Okay, computer का जो भी information है storing capacity, we know that it is totally depend on the motherboard, और हम लोग जितना bigger motherboard लगाएंगे उतना वो डाटा क्या करेगा, स्टोर करेगा। It can process a huge data within a fraction of second. लोग जो भी डाटा है बहुत सारे डाटा को एक साथ भी उसमें क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं within a fraction of second. We can obtain an output from computer by various way like a display. Okay, जैसे हम लोग वहां पर इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं, सो कंप्यूटर में कुछ आउटपुट्स भी मिल सकते हैं। जैसे अगर मैं सामने वाले से अगर लाइव चैट कर रहा हूँ तो उसका पिक्चर या तो इमेज भी मुझे दिख सकता है। सो वी कैन ऑब्टेन आउटपुट ऑफ फ्रॉम कंप्यूटर बाय वेरियस वे लाइक अ डिस्प्ले ऑन मॉनिटर, डायरेक्टली डिस्प्ले होगा मॉनिटर पे। साउंड थ्रू अ स्पीकर, हम लोग उसको स्पीकर कनेक्ट करेंगे तो स्पीकर से हमको साउंड भी मिलेगा। हार्ड कॉपी फ्रॉम द प्रिंटर, लोग उसको प्रिंटर से कनेक्ट करेंगे तो वो हार्ड कॉपी के फॉर्म को प्रिंटर से मिल जाएगा। एंड विजुअल फ्रॉम प्रोजेक्ट, प्रोजेक्टर से कनेक्ट किया तो फिर हमको विजुअली भी हो जाएगा। एक्सेट when a computer is attached with the internet system, it is empowered by ocean of information in the world wide web। और उसी कंप्यूटर को अगर हमने इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया, सो पूरे के पूरे वर्ल्ड में, पूरे के पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी हम लोग उस कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज यूज ऑफ अ कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ सो मेनी थिंग्स। सो इससे फार्मर्स भी इसका यूज कर सकते हैं। नाउ computer can be used at each level in the process of communication. At the source, a scientist or an expert, इसका यूज साइंटिस्ट या तो एक्सपर्ट भी कर सकते हैं। Subject matter specialist can use a computer to shape information in writing
फैक्टोरियल, मूवी एंड ऑडियो। यानी कि जो भी यूज करेगा तो वो उसको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। मीन इफ आई एम गैदरिंग द डाटा, जैसे कि अगर कोई फार्मर है, अगर उसके पास बहुत सारे डाटा उसने कर दिए गैदर कर, लाइक वाइज की प्लांट का हाइट फर्स्ट डे में क्या था, सेकंड डे में अलग अलग प्लांट के हाइट, सो उसके हिसाब से वो उसके वीडियो देन ऑडियो में कन्वर्ट, उसके खुद के ऑडियो डाल के उसमें क्या बोलना है, देन वहां पर पिक्टोरियल फॉर्म में, यानी कि वहां पर पाई डायग्राम अलग अलग फॉर्म में उसको कन्वर्जन दे सकते हैं। It can be spread or disseminated to extension worker through a CD and VCD। फिर वो जो भी डाटा है वो CD के थ्रू में, VCD के थ्रू में, माइक्रो SD कार्ड, यू नो दैट SD कार्ड वगैरह जो भी आता है, मेमोरी कार्ड के थ्रू में, USB स्टोरेज डिवाइसेस और थ्रू इंटरनेट इन एनी ऑडियो वीडियो विजुअल एंड ऑडियो विजुअल फॉर्म। सो इंटरनेट के फॉर्म में यूट्यूब के ऊपर या तो बहुत सारे यूज करके लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर का यूज जो भी एग्रीकल्चर में करते हैं। एक्सटेंशन वर्कर कैन लोड द इंफॉर्मेशन इन हिज कंप्यूटर एंड यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विद द फार्मर्स। ओके, सो जो भी एक्सटेंशन वर्कर वगैरह है, सो ये सब जो भी उसके इंफॉर्मेशन है ये कंप्यूटर में लोड कर सकते हैं और ये इंफॉर्मेशन को यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विद द फार्मर्स। यानी कि फार्मर्स को अगर कोई यूज करना है तो ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसको इंटरनेट के थ्रू में या तो ऑनलाइन के थ्रू में अलग अलग डिवाइसेस क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर फार्मर्स प्रोवाइड। इफ computer, if available, farmer can also use their computer or any electronic gadget to store and use the information। अगर farmers को भी अगर हम लोग ऐसे कुछ प्रोवाइड करें कि दे हैविंग अ कंप्यूटर, या तो कंप्यूटर छोड़ के दूसरे भी अगर कुछ एक्टिविटी के लिए अगर उनके पास है, जैसे कि सेल फोन से नॉर्मल जिसके अंदर वो लोग वीडियोस वगैरह ले सकते हैं, तो ऐसे सेल फोन से भी वो लोग एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो एक पॉइंट दिया है कि फार्मर्स कैन यूज दैट पॉइंट। नाउ कंप्यूटर इज आल्सो हेल्पफुल टू obtain a feedback from receiver at each level। Okay, farmer can easily assess a require information on a crop, store systematically using a network of computer। यानी कि अगर फार्मर्स को किसी पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन लेना है so they can go live, otherwise they can go to a internet, वहां पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग नेम में वो वहां पर सिस्टमैटिकली जो भी है कंप्यूटर में स्टोर किया है, so वहां से वो यूज कर सकते हैं। Some farm management software can help a farmer to maintain their farm more efficiently and increase the productivity of their input use। यानी कि अगर कोई फार्मर्स बहुत ही ईगर टर्म में अगर ये कर रहे हैं तो वहां पर वो कंप्यूटर रख के उसके जो भी डाटा जो भी है उसको कंप्यूटर में रख के उसका यूज कर सकते हैं, सो अल्टीमेटली उनके जो फार्म्स है वो अच्छे से मेंटेन हो सकते और इफिशियंट हो सकते। लाइक वाइज अगर उनको कुछ सेलिंग वगैरह करना है तो पिक्चर्स वगैरह लेके वहां पर डाल दिया, सो अल्टीमेटली द पीपल कैन इंटरेक्ट। नाउ कंप्यूटर, द एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, you know that there are different type of operating system in our market, so that is Microsoft, you know that Microsoft, then Windows, Ubuntu, Linux. Then example of a web browser are Microsoft Internet Explorer, okay, then Mozilla, Firefox, then Google Chrome, which we are using in a computer also, then Apple and the Safari. Okay, so these are the some type of software which you are using for the uh, communicating with the people. Web browser we use that. Now the second point, that is the internet. Now what's the meaning of internet? Internet is a global network that connects a computer across the globe. The long form of internet is international network। Now if you having a computer but उसके अंदर इंटरनेट नहीं है तो we can't connect with the people। आप लोग कंप्यूटर पे डाटा स्टोर कर सकते हो और वो अपने लिए यूज कर सकते हो, लेकिन किसी और का डाटा अगर आपको ऑनलाइन कहीं से कलेक्ट करना है, सो फॉर दैट वी हैविंग इंटरनेट, उसके लिए हमारे पास इंटरनेट बहुत जरूरी। Especially in the science of agriculture, there is a vast gap between the advanced countries and that of undeveloped। If we are comparing with, अगर हमने इंडिया को भी अदर कंट्री से ये किया
मिल जाएगी, वहां पर रोबोट्स वगैरह जो भी होते हैं वो ज्यादातर वर्क करते हैं. सो अल्टीमेटली ये कैसे वर्क करेगा? सो दे आर वर्किंग विद द इंटरनेट, सो दे आर मोर एवर यूजिंग अ इंटरनेट बिकॉज ऑफ दे आर डेवलप. सो कुछ जो कंट्रीज जैसे हमने इंडिया वगैरह, तो यहाँ पर भी ये यूज होता है, बट नॉट ऑल फार्मर आर यूज. ओके, सो वो एक internet facility developing country to get their direct access to the research and experience of developed countries and use it for a improvement in the field of agriculture. So developed country कैसे यूज कर रहा है उनका जो भी है, तो उसके डाटा को या कैसे यूज करे है, उसका यूज अनडेवलप या तो डेवलपिंग कंट्री भी अपने लिए यूज कर सकती है फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर. नाउ इंटरनेट इज आल्सो यूज इन researching market information about a particular input as well as output of the agriculture. यानी कि अगर मुझे किसी प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है, तो मैं इनपुट के फॉर्म में या तो आउटपुट के फॉर्म में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू सर्च कर. नाउ ऑनलाइन मार्केटिंग हैज ओपन अ न्यू हॉरिजन ऑफ natural national and international market down to one of the farm. यानी कि फार्मर्स के पास अगर कुछ है, अगर उसको सेल करना है, so ultimately there are so many ways they can sell their product. Like Amazon, अगर आप लोग Amazon पे भी चेक करोगे तो बहुत सारे अभी जैसे कि जो भी प्लांट प्लेट्स होते हैं या तो बल्ब वगैरह होते हैं फ्लावर्स वगैरह के, वो सब सेलिंग होता है. सो अल्टीमेटली इफ द फार्मर हैव दैट थिंग्स, अगर उनको इंटरनेट यूज करना आता है, मोबाइल्स के ऊपर फोटोज वगैरह जो भी अच्छे से कलेक्ट करना आता है, so that farmer can use their thing to selling also. तो ये सेलिंग में भी यूज हो सकता है नेशनल as well as international platform. Now the internet facility can be obtained on the computer, laptops. हम लोग कंप्यूटर पे यूज कर सकते हैं, लैपटॉप पे यूज कर सकते हैं, टैबलेट कंप्यूटर पे यूज कर सकते हैं, देन मोबाइल सेल, यानी कि नॉर्मल हमारा जो मोबाइल सेल होता है वहां पर भी हम लोग इंटरनेट का फैसिलिटी यूज करते हैं. The device can be connected with the internet by so many ways. These are the optical fiber cable, okay? Optical fiber cable जो भी है उसके फॉर्म में. Then telephone landline, जैसे कि हमारे यहाँ BSNL है, तो उसके थ्रू भी हम लोग हमारे घर जो लैंडलाइन है उससे भी इंटरनेट हम लोग ये कर सकते हैं. Then there are Wi-Fi, you know that कि डायरेक्टली Wi-Fi सिग्नल हमारे घर तक आता है और वो Wi-Fi से भी हम लोग यूज कर सकते हैं. सेल फोन सर्विस प्रोवाइडर, ओके, वी नो दैट कि अभी हम लोग जो भी सेल फोन यूज करते हैं तो उसके अंदर भी इंटरनेट यूज होता है, तो अल्टीमेटली सेल फोन सर्विस प्रोवाइडर दे रहा है तो उससे भी यूज कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू अवेलेबल डिवाइस कंपैटिबिलिटी ऑफ इंटरनेट सर्विस कैन बी. तो आपके पास कौन सा डिवाइस है और उसके लिए कौन सा सुटेबल है, उस फॉर्म में हम लोग उसको यूज करते हैं. लाइकवाइज कंप्यूटर है तो उसके लिए आप लोग सेलफोन सर्विस प्रोवाइडर से नहीं करोगे, तो उसके लिए आप लोग वाईफाई के लिए जाओगे या तो टेलीफोन लैंडलाइन के लिए जाओगे या तो ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज. सो अकॉर्डिंग टू योर दैट इज कंपैटिबिलिटी ऑफ दैट थिंग, यानी कि हमारे पास क्या है उसके हिसाब से. नाउ गवर्नमेंट एजेंसी लाइक BSNL, दैट इज भारत संचार निगम लिमिटेड, it is provided internet through a cable and a cell phone on a occasion rate, यानी कि बहुत ही लो रेट पे हमारा जो भी गवर्नमेंट है, क्या हमारा इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है ये में इंटरनेट प्रोवाइड कर, पर्टिकुलरली टू द रूरल कम्युनिटी एंड द फार्मर्स. और ये ज्यादातर जो अंदर के साइड है जहाँ पर इंटरनेट का फैसिलिटी होता है ऐसे जगह पे भी ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं. Now the internet for operating the concerned website through an internet software like Microsoft Internet Explorer, then Google Chrome, Firefox, Mozilla, etc. are. If the name of particular website is not known, search engine can be used. यानी कि देखो अगर हमको किसी के बारे में जानकारी नहीं है तो हम लोग सर्च इंजन में जाके भी उसको सर्च कर सकते हैं. उसका मीन्स इफ यू डोंट हैव डायरेक्टली अ वेबसाइट, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है किसी थिंग्स का, तो अल्टीमेटली हम लोग सर्च इंजन पे भी सर्च करते हैं. सो द सर्च इंजन लाइक मोबाइल फोन में भी हम लोग यूज करते हैं, दैट इज google.com, गूगल पे हम लोग सर्च करते हैं, देन yahoo.com, देन bing.com, msn.com एंड AOL
gov.com excel are open and word related to the information search are type in the search box. तो इसके सर्च बॉक्स पे जब लोग सर्च करेंगे तो यू विल गेट सो मेनी वेबसाइट जो कि उससे रिलेटेड रहेगा, फिर उसके अंदर से हमको चूज करके उस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके लोग उसको यूज कर सकते हैं. The search engine display thousands of related websites from which we can select the most relevant and reliable one and click to open. If we are click it, तो वो क्या हो जाएगा open. Now the next point, the website are provided by government or non-government organization, private companies also and advertising agencies. So जो वेबसाइट है वो अलग अलग है, जिसके भी है गवर्नमेंट्स को भी होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं, प्राइवेट कंपनीज के भी होते हैं और एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज. नाउ website can be classified on their domain name. A domain name is the last name of the website, that is .com. ओके, यहाँ पर देखो जैसे कि यहाँ पर यूज किया है .com, गवर्नमेंट के लिए gov.in, देन ऑर्गेनाइजेशन के लिए org.com. वेबसाइट इज यूजुअली ऑपरेटेड बाय कमर्शियल while government gov.in domain is operated from government, यानी कि गवर्नमेंट की ज्यादातर जितने भी डिपार्टमेंट है वो ये वाले वेबसाइट को यूज करते हैं ताकि gov.in आपको वहां पर ज्यादातर मिलेगी. और जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है वो org.in जो भी है ये वाला ज्यादातर. तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन use org domain. The domain name also helps us help us in identification of country. Example, it is reserved for India. That is IN is reserved for India. यानी कि मोस्ट ऑफ हमारे यहाँ पर जितने भी वेबसाइट है तो उसके लिए इंडिया के लिए ज्यादातर जो वेबसाइट है उनके अंदर आपको IN, सो IN दैट इज यूज फॉर इंडिया, सो इंडिया के लिए. वैसे यहाँ पर NL इट इज यूज फॉर नेदरलैंड, while US it is used for US. तो जो US वाला है वो USA के लिए ऐसे अलग अलग वेबसाइट से यूज. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, that is some of the important websites useful for the farmers are listen below, try to open. ओके, आपके बुक के अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के या तो पूरे गवर्नमेंट के अलग अलग वेबसाइट एग्रीकल्चर से रिलेटेड दिए. देखो यहाँ पर जो गवर्नमेंट के है देखो वहां पर क्या यूज किया है gov.in, that www महा एग्री गवर्नमेंट NCARORG के लिए nic.in.com. This is some of the website where you get information that is related with the